Hello everyone, welcome to my channel CS Legal World, and today we are doing chapter 7 of the topic CRI, and I hope we're gonna do that chapter in detail within 30 minutes. Let's try that. And before we go ahead, let's understand कि topic में पूछा क्या क्या अपने को. So mostly इसमें से question आया है AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से रिलेटेड, और सेकेंडली इसमें क्वेश्चन आया था दिस वन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड. सो दीज वर the two most important factors asked in this topic in the exam. So let's understand दिया क्या क्या. Introduction, applicability, exception, AS 14 types of amalgamation, methods of accounting for amalgamation. तो मेथड में है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, परचेज मेथड. फिर कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन क्या दोगे आप, ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑन अमालगमेशन, गुडविल ऑन अमालगमेशन कैसे निकालोगे, बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अमालगमेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट, then as I said IS 103 business combination, then business and business combination, then उसके बाद again business combination, so much of business combination running around. Business combination of entities under common goal, methods of accounting for common goal business combination, disclosures क्या क्या देना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. बेसिकली ये सारा एक ही पार्ट में कवर्ड है. रिसेंट डेवलपमेंट इन M&A अकाउंटिंग क्या हुआ है, IFRS 3 क्या है, डीमर्जर क्या है, देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ Ind AS फॉर डीमर्जर ट्रांजैक्शंस क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. सो बेसिकली दीज आर द टॉपिक जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में से. ऑफकोर्स कुछ इन डिटेल तो समझा नहीं रहेगा, अभी तक हमने सिर्फ टॉपिक देखा है क्या क्या पढ़ना है. Now before we go ahead, this is the full-fledged and revised and amended notes for December 22. So anyone wish to watch can watch. No objection. Let's start that. So chapter 7 talks about accounting in corporate restructuring. So in earlier chapters we saw that कि corporate restructuring ठीक है, section this section that, इसका उसका ना whatever. अब हमको क्या देखना है, taxation देखना है क्या, combination देखना है क्या, नहीं. We are looking forward with accounting in corporate restructuring कैसे होने वाला है. So firstly we are talking about AS 14, that is accounting for amalgamation. Amalgamation includes absorption and amalgamation includes amalgamation of course. Sorry, my bad, it's just include one thing here in this chapter, absorption. Okay, now so basically AS 14 recognizes two types of amalgamation, merger and purchase. तो merger के केस में ये 5 conditions दिया है. I hope this is visible. बेसिकली दीज 5 कंडीशंस आर गिवन. अगर ये पांचों कंडीशन आप पूरा करते हो तो हम लोग बोलेंगे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और अगर इनमें से एक भी कंडीशन आप पूरा नहीं कर पाते हो तो हम बोलेंगे अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. ना अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होगा, जब ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगी. पहला क्या है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम आफ्टर अमालगमेशन ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शैल बी टेकन एट बुक वैल्यू. बेटा अपने को मार्केट वैल्यू पे लेना है क्या, बताना जरा, मार्केट वैल्यू पे लेना है क्या, नहीं. वी हैव टू टेक इट ऑन बुक वैल्यू. सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैज टू बी टेकन एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. अगर इसमें भी एक्सेप्शन दिया है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज को मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए आप अपना जो बुक वैल्यू से नहीं ले रहे हो तो चलेगा, बट all the time we have to take it from book value itself. At least 90% of equity shareholder of transferor company become equity shareholder of transferee company other than the equity share already held in before amalgamation by transferee company or their subsidiary or associate company. तो इस पॉइंट का क्या मतलब है समझना. सो लेट्स से रोशनी लिमिटेड इज गेटिंग मर्ज्ड विद दीपक लिमिटेड. सो दीपक लिमिटेड इज द ट्रांसफरी कंपनी and रोशनी लिमिटेड इज गेटिंग amalgamated into that company. So basically in short, the Roshni Limited is transferor company because my assets, my liabilities, and I'm totally getting transferred into Deepak Limited. So are you understanding the fact that 90% of equity shareholder of transferor company, मतलब 90% of my shareholder, 90% share of Roshni Limited, ठीक है, बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी. अब ऐसा बोला है क्या कि इक्विटी शेयर होल्डर रोशनी लिमिटेड के दीपक लिमिटेड में बन जाएंगे प्रेफरेंस, तो नहीं भाई, इक्वल राइट दो ना. इक्विटी जा रहा है तो इक्विटी में ही कन्वर्ट करो. सो 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ रोशनी लिमिटेड वुड बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ दीपक लिमिटेड
एंड जो दीपक लिमिटेड है जिसमें सारी चीज़ें जा रही है वो ट्रांसफरी कंपनी हो जाएगा, जो ट्रांसफरर कंपनी है वो मैं हूँ, मैं सारी चीज़ें दे रही हूँ। अदर देन द इक्विटी, अच्छा मेरे को एक बात बताना, अदर देन द इक्विटी शेयर होल्डर ऑलरेडी हेल्ड इन बिफोर अमालगमेशन बाय दीपक या फिर सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी। सो लेट्स से दीपक लिमिटेड इज ऑलरेडी होल्डिंग इन मी बिफोर अमालगमेशन, अभी तक अमालगमेशन नहीं हुआ है, बिफोर अमालगमेशन इज ऑलरेडी होल्डिंग 20% in transferor company which is Roshni Limited. So Deepak Limited is already holding his 20% in me, right? तो कितना जाएगा अमाउंट, फिर कितने का 90% लोगे, कितना 90% होना चाहिए, ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो जो लेट्स से 100% इक्विटी शेयर होल्डर पकड़ो रोशनी लिमिटेड में, जिसमें से 20% इज ऑलरेडी हेल्ड बाय दीपक लिमिटेड। तो अब 80% का आप 90% निकालो, उतना 90% किस में ट्रांसफर होना चाहिए बेटा? दीपक लिमिटेड में। आई थिंक इतना समझ गया रहेगा। देन कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स देन कैन बी पेड बाय कैश। मतलब मैंने बोला ना, इक्विटी शेयर होल्डर को आप इक्विटी शेयर होल्डर ही दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप इक्विटी शेयर्स ही दोगे। आप जो फ्रैक्शनल है उनको आप कैश दे सकते हो, जैसे कि after conversion you're getting 2.5 shares of that company. Now 2.5 shares में 2 shares तो आपको मिल जाएगा as the case may be depending upon the ratio, but 0.5 का क्या करोगे? 0.1 रेशियो, 0.5, 0.3, ये सारे पॉइंट्स का क्या करोगे? तो इनको आप कैश दे सकते हो। देन फिफ्थ वाला है बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी आफ्टर अमालगमेशन कैरिड ऑन बाय ट्रांसफरर कंपनी। तो रोशनी लिमिटेड का जो भी बिजनेस था वो कौन संभालेगा? दीपक लिमिटेड। तो अगर हम इस एग्जाम्पल्स को देखें और हम इसको याद करने के तरीके से देखें कि ये वाला चैप्टर जो है ना आपका, वो मेरे साथ हो जा रहा है, ठीक है, तो दोबारा आपको इसको रिविजन भी करना होगा ना, यू कैन ओपन अ माय वीडियो एंड जस्ट रिवाइज दिस अप, राइट? तो ऐसे इसको लर्न करते कि अपने को याद हो जाए। 5 कंडीशन कौन कौन सी थी बेटा? सॉरी 5 कंडीशन कौन कौन सी थी? इफ यू ऑल रिमेंबर 5 कंडीशन कौन कौन सी थी? पहली कंडीशन तो ये देखा था हमने कि रोशनी लिमिटेड के जो एसेट्स है, ठीक है, रोशनी लिमिटेड के जो एसेट्स है वो दीपक लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएंगे, बिकॉज रोशनी लिमिटेड इज ट्रांसफरर कंपनी एंड दीपक लिमिटेड इज ट्रांसफरर कंपनी। तो रोशनी लिमिटेड के सारे एसेट्स, इसको ना आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। आई नो दैट्स गोना लुक फनी, दैट्स गोना साउंड फनी, बट यू हैव टू connect every answer to certain things so that you can remember. I'll tell you how. So Deepak is my husband and I'm Roshni his wife. ठीक है, रोशनी लिमिटेड assets is getting transferred to Deepak Limited. मेरे पापा ने जो भी मेरे को बेड दिया था, AC, वॉशिंग मशीन, whatever, now that is getting transferred to Deepak Limited. First point clear. Second, ये तो हो गया था assets का। Second point क्या था बेटा अपना? याद करो क्या था? बुक वैल्यू पे लेना है, ठीक है, जो भी एसेट्स आप ले रहे हो वो आपको बुक वैल्यू पे ही लेना है अनटिल अनलेस अकाउंटिंग स्टेटमेंट को आप यूनिफॉर्मिटी में नहीं रखने के लिए आप एक्सेप्शनल केस दे सकते हो। थर्ड क्या था कि 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ रोशनी लिमिटेड would become equity shareholder of Deepak Limited except the earlier holding of Deepak Limited into Roshni Limited or Deepak Limited himself or by his any of subsidiary or associate company। ये 3 पॉइंट तो याद हो गए बेटा। चौथा पॉइंट क्या था अपना? कुछ याद आ रहा है? मेरे को पांचवा याद आ रहा है कि पांचवा ये था कि रोशनी लिमिटेड का बिजनेस अब कैरी ऑन करेगा दीपक लिमिटेड, ये पांचवा था। चौथा क्या था कि उनको कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स में ही दोगे, किसी अदर फॉर्म में नहीं दोगे। आई जस्ट होप दिस इज द वन। कंसिडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर ट्रांसफर फ्रैक्शनल शेयर में कैश पे कर सकते हो। ऑलराइटी, सो डन। अच्छा, अब ये पांचों कंडीशन जो थे ना रोशनी दीपक लिमिटेड के, ये अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो हम मानेंगे आपका अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। समझा इतना? चलो, सो इसी का एग्जाम्पल दिया अभी जो हमने पढ़ा था ना कि और ये वाला थर्ड, ये जो लाइन पढ़ी थी ना हमने, थर्ड वाला पॉइंट 90% एक्सेप्ट द अर्लियर होल्डिंग, तो इसका एग्जांपल है। इस एग्जांपल से आपको पॉइंट बहुत अच्छे से समझ जाएगा। सो एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को अक्वायर किया है इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, क्या किया बेटा? इन द नेचर ऑफ मर्जर किया है ना, दिख रहा है या नहीं आप लोगों को? ठीक है, अभी क्लियर होगा ये। चलो, सो एक्स लिमिटेड हैज अक्वायर्ड वाई लिमिटेड इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है, सेकेंड बोल रहा है कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू द शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड इन 1:1 रेशियो दिया है।
मतलब इन शॉर्ट आपको समझा क्या, एक्स लिमिटेड जो था उसने एक्वायर किया था वाई लिमिटेड को, वाई लिमिटेड के जो इक्विटी शेयर होल्डर थे उनको एक्स लिमिटेड का 1:1 रेशियो में शेयर्स मिल गए, ठीक है, ये भी समझ गया। ऑलरेडी हेल्ड 5% ऑफ वाई लिमिटेड प्रायर टू अमालगमेशन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, वाई लिमिटेड में एक्स की होल्डिंग पहले से थी 5% की, समझा, ओके फेयर, बिफोर अमालगमेशन। नाउ 86% ऑफ शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एक्स लिमिटेड, अग्री टू बिकम द शेयर होल्डर। मतलब ऐसे भी होता है ना कि 9, जैसे उसमें दिया था मैंने कंडीशन में था कि 90% शेयर होल्डर अग्री होने चाहिए एक्सेप्ट द अर्लियर होल्डिंग ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो अब ये देखना, 86% ऑफ शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड जो है ना, एक्सक्लूडिंग एक्स लिमिटेड ने मना कर दिया, अग्री टू बिकम शेयर होल्डर, बिकम बाय फेस वैल्यू, 86% ऑफ शेयर होल्डर बाय फेस वैल्यू होगा शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड। नाउ अबव केस क्वालिफाइड टू बी क्लासिफाइड एज मर्जर एज पर AS 14। कैसे, क्या ये क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में। अब आप मुझे बताओ कि अबव केस क्वालिफाई होगा क्या ऐसा टू बी क्लासिफाइड एज मर्जर एज पर AS 14, कैसे होगा वो बताना। तो सॉल्यूशन क्या दिया यहाँ पर देखना, दैट एटलीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ये तो मैंने कंडीशन लिखा है दैट कि 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ रोशनी लिमिटेड बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ दीपक लिमिटेड अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर ऑलरेडी हेल्ड बाय दीपक लिमिटेड बिफोर अमालगमेशन एनी ऑफ इट्स सब्सिडियरी या फिर एसोसिएट कंपनी। इवन इफ वी एक्सक्लूड शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड, देखना यहाँ पे, इवन इफ वी एक्सक्लूड शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड होगा, वाई क्यों लिखा है मैंने, ऑलरेडी हेल्ड बाय, अच्छा ओके बराबर। सो इवन इफ वी एक्सक्लूड शेयर ऑफ वाई लिमिटेड ऑलरेडी हेल्ड बाय एक्स लिमिटेड कंसिक्वेंट टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर परसुएंट टू मर्जर, 90% क्राइटेरिया फॉर अमालगमेशन ऑफ मर्जर इज बीइंग मेट। कैसे बेटा, अमालगमेशन एज मर्जर इज बीइंग मेट कैसे। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका 90% निकाल दूँ, 86% हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, मैं 90% निकाल दूँ तो किसका 90% निकालूँ मैं, 5% होल्डिंग ऑलरेडी इसकी थी, तो आइडियली आई शुड, अगर मैं इसका 90% निकालूंगी तब तो 90% शेयर मानेंगे तभी क्राइटेरिया मेट होता है। लेकिन अगर मैं चालाकी दिखाऊं, क्योंकि 5% तो ऑलरेडी दीपक के पास था, है ना, तो 95 का 90% निकालेंगे विच इज़ 85.5, तो 86 लोग तो मान गए ना, 86% तो मान गए ना पब्लिक, तो हो गया ना क्राइटेरिया मेट। क्या दिया है और क्या दिया है देखना, 95 का 90% इतना होता है, 86 मान गए तो क्राइटेरिया इज बिंग मेट। आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी टफ था अभी तक के। सो नाउ वी आर डूइंग मेथड्स फॉर अकाउंटिंग एंड अमालगमेशन। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल, आई एम जस्ट होपिंग दिस वन टू बी विजिबल, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर डूइंग मेथड्स फॉर अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अमालगमेशन, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, बेसिकली मॉड्यूल में दोनों अलग अलग दिया है बट मैंने ईज ऑफ स्टडी के लिए ये दिया है। तो व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर तो क्या, एंड व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज तो क्या, तो सारे डिफ्रेंशिएट मैंने दे दिए है यहाँ तक के। तो लेट्स डू दैट। सो बेसिकली अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है so we gonna use pooling of interest method, and if it is in the nature of purchase method है तो purchase method use करेंगे। Now in the nature of merger we are doing ना pooling of interest method we are doing, so let's focus on that. I hope visible होगा guys. So what are we doing? Pooling of interest method we are doing. First point क्या दिया देखना, that minimal changes are made in aggregating the individual financial statement of amalgamating company while preparing transferee company's financial statement. ये नीचे का पॉइंट तो सॉरी इस वाले बॉक्स का है। तो मिनिमम चेंजेस आर मेड इन एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी। सो बेसिकली जब आप एग्रीगेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तो आप मिनिमम चेंजेस रखो, एकदम मिनिमल चेंजेस रखो। फर्स्ट पॉइंट तो ये इन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में जो कि हमको समझा। वाइल प्रिपेयरिंग ट्रांसफरी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रांसफरी कंपनी कौन था बेटा अपने केस में, दीपक लिमिटेड था, रोशनी आ गई ना उसके पास, तो दीपक लिमिटेड हो गया ना ट्रांसफरी कंपनी। सो नाउ दिस इज ट्रांसफरर कंपनी, दिस इज ट्रांसफरी कंपनी, सो रोशनी एंड दीपक, ठीक है। सो नाउ एसेट्स प्लस लाइबिलिटी प्लस रिजर्व वेदर कैपिटल रेवेन्यू अराइजिंग ऑन रीवैल्यूएशन, दैट्स गोना बिकम द एसेट्स लाइबिलिटी रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। तो देखना यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ये तो हमको पता है कि एसेट्स रोशनी के एसेट्स दीपक के हो जाएंगे, बट कौन से वैल्यू पे,
बुक वैल्यू पे कि किसी अदर वैल्यू पे, तो वो देखना है। अभी क्या लिखा है यहाँ पे कि वाइल प्रिपेयरिंग ट्रांसफरी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जब आप दीपक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे ना, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ट्रांसफरर कंपनीज का जो भी एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इवन फॉर दैट रेवेन्यू है, रिजर्व्स है, क्या क्या बोला मैंने, एसेट्स, लाइबिलिटी, रिजर्व। रिजर्व कौन से भी नेचर का हो, कैपिटल हो, रेवेन्यू हो, या फिर रिवैल्यूएशन वाला रिजर्व हो। 3 रिजर्व बोले मैंने, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर रिवैल्यूएशन वाला। तो एसेट्स, लाइबिलिटी एंड रिजर्व ऑफ रोशनी लिमिटेड शुड बी रिकॉर्डेड इन देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, दैट इज द बुक वैल्यू। कि जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी ना दीपक लिमिटेड का, तो ट्रांसफरर कंपनी मतलब रोशनी लिमिटेड की जो भी एसेट्स, लाइबिलिटी, रिजर्व थे ना, मैं उसको एज इट इज बुक वैल्यू पे ट्रांसफरी कंपनी के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगी। इतना समझ में आया बेटा? देन सेकेंड था बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट मतलब रोशनी लिमिटेड का जो भी बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट था, that has to be aggregated with corresponding balance or transfer to general reserve if any। but बेटा ये याद रखना कि परचेज मेथड में ऐसा नहीं होता है। when we talk about परचेज मेथड ना, तो परचेज मेथड में आप जो भी पीएनएल, जो भी रोशनी लिमिटेड के सारे रिजर्व थे, आप उसको एक ही किसी अकाउंट में डाल के उसको नेम देते, वो हम लोग आगे करेंगे। बट आप उसको करस्पॉन्डिंग बैलेंस आप ट्रांसफर नहीं करते हो उस पर्टिकुलर अकाउंट में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट पूलिंग मेथड, इंटरेस्ट ऑफ पूलिंग मेथड, सो व्हाट वी डू हियर इज वी जो भी अपना बैलेंस है, कोई भी रिजर्व का, सिर्फ पीएनएल का नहीं, कोई भी रिजर्व का, वो हम लोग करस्पॉन्डिंग बैलेंस जो रहता है उसी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो जनरल रिजर्व में करेंगे। थर्ड वाला क्या है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज बिटवीन ट्रांसफरर कंपनी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसफरर कंपनी है वो WDV मेथड यूज़ कर रहा है, और जो ट्रांसफर आपको बोर हो जाएगा। जो रोशनी लिमिटेड है वो WDV मेथड यूज़ कर रही है, और जो दीपक लिमिटेड है वो दूसरा मेथड यूज़ कर रहा है, अकाउंटिंग का दूसरा मेथड यूज़ कर रहा है। तो मुझे बताना डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज बिटवीन रोशनी एंड दीपक है अ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड आफ्टर अमालगमेशन। ओके, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा? तो इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट of changes in accounting policy shall be reported as per AS5। नेट PNL जो भी है, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये AS5 basically AS5 talks about this। now let me make you understand this question। ठीक है, समझ रहा है इतना? इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज है, तो रोशनी यूज टू स्मोक बिफोर मैरिज एंड दीपक यूज टू बी वेरी सिंपल। आई डोंट स्मोक, I'm just giving you an example that Roshni used to smoke before marriage, and Deepak was someone very simple, very sober. He doesn't used to smoke, or he actually hates that. Okay, so now in case of conflicting accounting policy है between Roshni and Deepak, smoke है इधर, smoke नहीं है, a uniform accounting policy to be followed after amalgamation। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, अच्छा ये थोड़ा सा वियर्ड एग्जाम्पल था, शायद मुझे देना भी नहीं चाहिए था, बट यू हैव टू मेक इट कनेक्टेड। आई डोंट नो, यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट। कितने सारे पॉइंट्स है यार, वो भी एक सब्जेक्ट के, एक चैप्टर के, एक क्वेश्चन में इतना पॉइंट है, तो फिर क्या बोलने का। सो कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज है अगर रोशनी एंड दीपक के बीच में, तो आपको आफ्टर अमालगमेशन यू हैव टू मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज शेल बी रिपोर्टेड। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज नहीं, सॉरी, इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज शेल बी रिपोर्टेड एज पर AS5। सो नेट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस है, उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट आ रहा है, दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड अंडर AS5। सो एज आई टोल्ड यू कि मैं सारा याद कराने वाली हूँ आपको। आई जस्ट होप अभी ये जो पुलिंग मेथड वाला किया है हमने, ये आपको याद होता है या नहीं, देखते हैं। सो दिस इज़ माई गारंटी, आई विल मेक श्योर कि आपको ये याद हो। हमने जितना पढ़ा है ना, हम वो याद करने की कोशिश करेंगे। पूलिंग मेथड में सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दीपक का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा उसमें मिनिमल चेंजेस करेंगे हम लोग। ठीक है, आफ्टर अमालगमेशन। ठीक है, समझा? फिर सेकेंड हमने पढ़ा था कि वाइल मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दीपक लिमिटेड वी हैव टू मेक श्योर टू थिंग्स, बिकॉज देयर वर टू थिंग्स इन द बॉक्स। पहला ये था कि क्या था,
जो भी एसेट्स, जो भी लाइबिलिटीज़, जो भी रिजर्व थे रोशनी लिमिटेड के, that would be recorded as of the same book value, same carrying amount, same book value पे जाएगा सारा का सारा, रिपोर्ट होगा दीपक लिमिटेड के अंडर। सेकंड हमने क्या पढ़ा था बेटा, कोई बता सकता है कमेंट करके सेकंड क्या पढ़ा था? याद नहीं आ रहा। सेकंड क्या पढ़ा था? एक तो बुक वैल्यू का पढ़ा था कि बुक वैल्यू पे होगा, सेकंड क्या था? क्या था? मेरे को याद करने की कोशिश कर रही हूँ, चलो नहीं याद आ रहा। वी गोना मूव टू थर्ड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट ये था, अभी ऐसे ही होता है, सेकंड भूल जाओ ना थर्ड भी याद नहीं आता, बट ठीक है, डजेंट मैटर, वी गोना ट्राई। थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी याद आता है वो बोल देती हूँ। फोर्थ फिफ्थ तक तो नहीं है, थर्ड ही पॉइंट है कि रोशनी लिमिटेड और दीपक लिमिटेड के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। सो आफ्टर अमालगमेशन यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज हैज़ टू बी फॉलोड बाय बोथ द पर्सन एंड बोथ द पर्सन, लुक एट माई इंग्लिश, बोथ द पर्सन, बोथ द कंपनी। एंड उसके बाद क्या था, एक ये भी था ना कि इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट has to be recorded on because of change in accounting policy has to be reported to AS5। सब कुछ याद आ गया? सेकेंड बॉक्स में क्या था, कुछ याद आ रहा है? एक तो था ना बुक वैल्यू पे होगा, सेकेंड क्या था? क्या था सेकेंड? याद करने की कोशिश कर रही हूँ बट याद नहीं आ रहा। चलो अब इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। ओ माय गॉड, ये था भाई कि जो भी बैलेंस होगा आपका पर्टिकुलर अकाउंट में, पर्टिकुलर रिजर्व में, वो सेम करस्पॉन्डिंग अमाउंट जो है, करस्पॉन्डिंग बैलेंस जो है, सेम ट्रांसफ़र होगा पीएनएल में, और अगर नहीं हो पा रहा है तो जनरल रिजर्व में होगा। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट हमारे हो गए, डन 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 डन। व्हाट डू यू से, शैल वी डू दिस वन और शैल वी डू Let me check that out for you. चलो ये वाला कर लेते हैं, सिमिलर है ना इसलिए। सो परचेज मेथड में क्या होगा बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट मेथड्स फॉर अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज अगर हो रहा है तो परचेज मेथड में क्या आएगा? हु कैन टेल मी दैट? परचेज मेथड में क्या आएगा? So assets and liabilities of Roshni Limited would either at existing carrying amount or alternatively consideration should be allocated to individual identifiable assets and liabilities on the basis of their fair values at the date of amalgamation। क्या समझ में इससे कि या तो आप सेम कैरिंग अमाउंट पे ले लो एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ठीक है, इधर एट एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, या फिर ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, कंसिडरेशन शुड बी अलोकेटेड टू इंडिविजुअल आइडेंटिफिएबल एसेट्स। आप इंडिविजुअल एसेट्स को आइडेंटिफाई करके, जो भी आइडेंटिफाइबल एसेट्स है इंडिविजुअल, आप एक एक एसेट्स पे कंसिडरेशन दे रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेयर वैल्यूज एट द ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन आएगा, ये ऑन आएगा इधर। समझ में आया इतना बेटा? क्या समझ में आया कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो भी है, ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? हम ये इन द अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज वाला मेथड कर रहे हैं। रोशे यहाँ पे क्या था बेटा, यहाँ पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या था कि जो भी एसेट्स लाइबिलिटी रिजर्व थे सारा का सारा बुक वैल्यू पे, सॉरी हाँ, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया, या तो आप एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पे ले लो, या तो फिर हर एक आइडेंटिफिएबल इंडिविजुअल एसेट्स जो है उनको आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल एसेट्स पे क्या दोगे, कंसिडरेशन दोगे। कौन से बेसिस पे? बेसिस ऑफ फेयर वैल्यूज ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन। ठीक है, फिर रिजर्व्स वेदर कैपिटल है, रेवेन्यू है, या फिर रिवैल्यूएशन है। ये सेम चीज़, ये जो ऊपर वाला पॉइंट किया था ना अपने, रिजर्व कौन सा था, कैपिटल था, रेवेन्यू था, या फिर रिवैल्यूएशन वाला था। तो अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व कौन से हो गए? जो कंपनी लो आपको बोलती है ये वाला रिजर्व बनाओ। कौन सा रिजर्व? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओ। जो स्टैट्यूटरी है, जो रिजर्व्स आप को लॉ बोल रहा है कि आपको बनाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, डिविडेंड देते हो या फिर DRR आप क्रिएट करते हो, CRR आप क्रिएट करते हो। ठीक है, तो ये सारे स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है आइडेंटिफाइड बाय लॉ, इनको छोड़ के जो बाकी के रिजर्व है जैसे कि PNL हो गया, और कौन से रिजर्व्स होते हैं, जो भी रिजर्व्स होते हैं, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिजर्व ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। कैन यू बिलीव दैट? तो
पहले के भाई रोशनी लिमिटेड के जो भी रिजर्व्स थे, अच्छा इसको एक और एग्जांपल आप दे सकती हूँ मैं आपको। सो लेट्स से रोशनी लिमिटेड के पास ना शादी से पहले 50,000 रुपये थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, इंटरेस्ट ऑफ पूलिंग मेथड में ये होता है कि ये जो 50,000 थे रोशनी के पास, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा में BOB, अब रोशनी लिमिटेड ने अपना बैंक बंद कर दिया शादी होने से के पहले, मतलब जब शादी हुई थी अपना बैंक बंद कर दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में डाल दिया दीपक के सेम अकाउंट। इट हैज़ टू बी सेम अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, रिजर्व्स वेदर कैपिटल रेवेन्यू रीवैल्यूएशन अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब इसमें क्या होगा कि रोशन लिमिटेड के पास 50,000 था बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो दीपक के पास वो 50,000 नहीं जाएंगे, वो रोशन लिमिटेड का था ना, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन रिजर्व ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। जाएंगे तो दीपक के पास ही, बट दीपक के रिजर्व में नहीं जाएंगे, दीपक लिमिटेड के रिजर्व में नहीं जाएंगे, उसको हम कहीं और डालेंगे विच वुड बी अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, लेकिन वो अब आगे आएगा, वो हम देखेंगे। तो जो पर्टिकुलर रिजर्व थे कि PNL अकाउंट था रोशनी लिमिटेड का, तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑफ पूलिंग मेथड में तो दीपक लिमिटेड के PNL अकाउंट में एग्रीगेट हो जाता, बट व्हेन वी आर डूइंग दिस अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो जो रिजर्व था रोशनी का विद द कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व should not be included in the reserve of Deepak Limited. Second क्या है, excess value over net assets of transferor company, goodwill in the transferor company's financial statement. इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक्सेस वैल्यू ओवर नेट एसेट्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जब आप नेट लाइबिलिटी नेट एसेट्स में से नेट लाइबिलिटी माइनस करते हो तो नेट एसेट्स आपका ज़्यादा आ गया, तो उसको गुडविल बोलते हैं, और ट्रांसफरिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो गुडविल जाएगा कि उसने गुडविल के पैसे पे किए। अगर कंसिडरेशन जो है, ठीक है, इफ़ कंसिडरेशन इज़ लोअर देन नेट एसेट्स, मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर रहे हो तो माइनस में अमाउंट आ रहा है तो लोअर है ऑब्वियसली, तो कैपिटल रिजर्व में शो करेगा ट्रांसफरिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड ये जो गुडविल आ रहा है दैट शैल बी अमोर्टाइज टू फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years। ये सबने हमने किया है ना टैक्सेशन में, अमालगमेशन में, कि वो क्या होता है 1:5 में 1:5 नहीं क्या बोल रही हूँ 1/5, मतलब 5/5 इंस्टॉलमेंट तक, मतलब 5 साल तक वो अमालगमेशन जो है अमोर्टाइज्ड होता है बेसिकली। कौन सा अमाउंट, गुडविल, ठीक है। नाउ दिस साइड इज pooling of interest method, this side is purchase method. सो अब हम निकाल रहे हैं डिफरेंस क्या है बेटा, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। सो डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन, बेसिकली आई थॉट ऑफ डूइंग इट विद इन 30 minutes, देन आई थॉट दैट इफ आई एम टीचिंग समबडी दिस, it should go into that person's mind, otherwise it is of no use, because I know this, I don't have to really understand this because I've already understood this, but I'm making you understand this and I'm really wasting my time, or let's say anything, investing my time in it. Wasting would look rude, so this is for you and I should I mean you should not I should firmly watch the video and firmly share the video, subscribe to the channel. ऐसा छोड़ो, बुरा लगता है बोलने में, but I just want this to be reached to the maximum people. That's the only motto, because your initiation, your appreciation is my motivation. हो गया तक? डिफरेंस क्या है, परचेज कंसिडरेशन एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। क्या बोला मैंने, डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन, मतलब दीपक लिमिटेड ने रोशन लिमिटेड को कितने में खरीदा है, परचेज कंसिडरेशन, बिकॉज रोशन लिमिटेड इज गोइंग टू दीपक लिमिटेड, सो दीपक लिमिटेड वुड हैव टू पे द पैसे, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी टू बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स, टू बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स। ये समझ में आपको ये वाला कि परचेज कंसिडरेशन एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी के बीच में जो भी डिफरेंस होगा ना, दैट हैज़ टू बी एडजस्टेड अंडर रिजर्व्स। If consideration paid by transferee company is less than the share capital of transferor company, such difference is added in capital reserve of transferor company. So ये एक ही पॉइंट है, सबसे पहले हमने ये देखा कि परचेज कंसिडरेशन और ट्रांसफरर कंपनी, मतलब रोशनी लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसका और परचेज कंसिडरेशन जितना पैसा उसको मिल रहा है दीपक लिमिटेड से, इसको एक एग्जांपल देके
समझा सकती हूँ, बट आई थिंक दैट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम. सो टू बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स, कौन से रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में. अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखना, ये है ट्रांसफर कंपनी, ये है ट्रांसफरी कंपनी, ये रोशनल लिमिटेड है, ये दीपक लिमिटेड है. सो रोशनल लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल था 5 करोड़ का, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल था 5 करोड़ का. और ट्रांसफरी कंपनी जो है वो कैपिटल रिजर्व है उसका 1 करोड़ का. कितना है बेटा? 1 करोड़ ही लिखा है ना यहाँ पे, 1 करोड़ ही लिखा है ना यहाँ पे. ये कहाँ से आ रहा है 1 करोड़? कैपिटल रिजर्व में जा रहा है. कैसे जा रहा है? सो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, इफ कंसिडरेशन पेड बाय ट्रांसफरी कंपनी इज लेस देन द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी. मतलब कंसिडरेशन कितना दिया है दीपक ने मुझे खरीदने के लिए 4 करोड़ दिया है, ठीक है, और मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल ही 5 करोड़ का है. तो 5 करोड़ मेरा ऑलरेडी वर्थ है, मेरे को 4 करोड़ दे रहे हो आप लोग, तो 5 - 4 इज हाउ मच? 1 करोड़. 1 करोड़ वुड शो अंडर कैपिटल रिजर्व ऑफ दीपक लिमिटेड. इससे बढ़िया तरीका मेरे पास नहीं था ये पॉइंट को समझाने के लिए. इफ कंसिडरेशन एक्सीड्स द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी दैट देन फॉलोइंग अकाउंटिंग रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा. क्या? इफ कंसिडरेशन जो आप दे रहे हो एक्सीड द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफर कंपनी. लेट्स से अगर ये 5 करोड़ के बदले मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़ का है, लेकिन ये मेरे को 6 करोड़ दे रहा है, तो एक्सीड होता कहीं ना कहीं. अगर उस वैसा केस होता तो फॉलोइंग आर दी अकाउंटिंग रूल. व्हाट आर दोस? So difference in amount is capital loss and reduced from reserve. Such loss is adjusted against capital reserve and revenue or revenue reserve. If both the company are insufficient, then P&L account में जाएगा. But it shall not directly debit to P&L account. If sufficient balance in P&L also, then difference reflected in asset side or balance sheet in separate heading, which is we gonna share further. but इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि क्या बोल रहा है. सो इफ कंसिडरेशन एक्सीड्स द शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, मतलब दीपक लिमिटेड मुझे 5 करोड़ दे रहा है, लेकिन मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 4 करोड़ का है, ठीक है, तो फॉलोइंग रूल मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, अकाउंटिंग रूल. तो पहला ये है दैट डिफरेंस इन अमाउंट इज कैपिटल लॉस. कि ऑब्वियसली आप मेरी बात को समझो ना भाई, मेरा वर्थ 5 करोड़ का था, ठीक है. If consideration exceeds the share capital of transferor company, then following accounting rules to be followed. Difference in amount is capital loss. कि मेरा वैल्यू था 5 करोड़ का, सामने से मुझे 6 करोड़ मिल रहा है, तो दीपक लिमिटेड को 1 करोड़ का कैपिटल लॉस हुआ. इतना समझ में आया? एंड रिड्यूस फ्रॉम रिजर्व, सच लॉस इज एडजस्टेड. तो ये कैपिटल लॉस में रिजर्व बैलेंस शीट के रिजर्व में लिखूंगी. यहाँ पे बैलेंस शीट का रिजर्व होगा लेट्स से, तो यहाँ पे रिजर्व लिखूंगी और रिजर्व में कैपिटल लॉस 1 करोड़ का माइनस कर दूंगी. सच लॉस इज एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व या फिर रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है. उसके बाद बोला है बोथ आर इनसफिशिएंट देन P&L अकाउंट. मतलब वो जो 1 करोड़ में माइनस कर रही हो ना, किस में से करूँगी? तो कुछ कैपिटल रिजर्व मेरे पास होगा या रेवेन्यू रिजर्व होगा, उस अमाउंट में से मैं 1 करोड़ का कैपिटल लॉस माइनस करूँगी. अगर इसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो P&L में जाके देखूंगी. पहले कहाँ जाऊँगी मैं? कैपिटल रिजर्व के पास. नहीं मिला रेवेन्यू रिजर्व के पास, फिर मैं बोलूँगी P&L देखना ज़रा तेरे पास पैसे है क्या, मुझे 1 करोड़ सेट ऑफ करना है. मतलब 1 करोड़ का जो लोन है वो मुझे एडजस्ट करना है, तो देखना तेरे पास पैसे है क्या. बट इट शैल नॉट डायरेक्टली डेबिट टू P&L. बट आप डायरेक्टली डेबिट नहीं कर सकते हो P&L अकाउंट में. कैसे? कि लेट्स से ये आपका P&L अकाउंट है, एग्जाम्पल ये आपका P&L अकाउंट है, यहाँ पे आपने डाल दिया कैपिटल लॉस ऑफ 1 करोड़ बाय रोशनल लिमिटेड. नहीं डाल सकते हो, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पे. दैट अकाउंट वुड बी सेपरेट हेडिंग में आपको डालना पड़ेगा. If insufficient balance in P&L also, then difference reflected in asset side or balance sheet in the separate heading. मतलब बैलेंस शीट के एसेट में आप सेपरेट साइड दिखाओगे, अगर P&L में भी पैसे नहीं है तो फिर ये वाला पढ़ना. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑन अमालगमेशन मर्जर. क्या ट्रीटमेंट दोगे, बस इतना ही पढ़ना है. उसके बाद हम लोग परचेज मेथड पे चले जाएंगे. ये वाला पेज कंप्लीट करने के बाद परचेज मेथड भी खत्म हो जाएगा. कि रिजर्व्स का क्या होता है अमालगमेशन होने के बाद. तो बेसिकली आइडेंटिफाई ऑफ रिजर्व इज प्रिजर्व्ड. कैसे कि रोशनल लिमिटेड के जो भी रिजर्व थे ना, P&L हो, ठीक है, कोई भी डिबेंचर क्या रिजर्व्स के नाम भूल गए मैं, P&L रिजर्व हो या फिर कोई भी रिजर्व्स हो, ठीक है,
वो जो भी रिजर्व है जिस भी सेक्शन में, वही सेम आप ट्रांसफ़र कर रहे हो दीपक लिमिटेड में, आप उसका आप उसका जो नेचर है, आइडेंटिटी है, वो आप प्रिजर्व कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व एंड CR रीवैल्यूएशन रिजर्व, जो भी है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, रीवैल्यूएशन रिजर्व है ऑफ ट्रांसफर कंपनी बिकम जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व ट्रांसफर कंपनी। एग्जाम्पल से समझाओगे। Reserves which are available for distribution of dividend in transferor company would also available for distribution of dividend to the dividend for amalgamation after amalgamation। मतलब कि इवन आपने ऐसा कोई रिजर्व बना के रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रोशनी लिमिटेड में, सेम अमाउंट वुड ट्रांसफर एंड वुड अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर अमालगमेशन इन दीपक लिमिटेड। सो आई थिंक ये अपना पूरा खत्म हो गया है। लेट्स मूव हेड विद दिस वन, परचेज वाले के साइड जाते हैं अब। यहाँ पर एक चीज़ बोली है दैट स्टैट्यूटरी रिजर्व शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी बाय क्रेडिटिंग द रेलिवेंट रिजर्व अकाउंट। स्टैट्यूटरी जो भी रिजर्व, यहाँ पे एक चीज़ होगी परचेज मेथड में कि स्टैट्यूटरी जो भी रिजर्व्स है ना, जैसे कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ही जाएगा। लेकिन देखना यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दीपक लिमिटेड बाय क्रेडिटिंग द रेलिवेंट रिजर्व अकाउंट। सेम the corresponding debit to be made under the head amalgamation adjustment reserve। किस में डेबिट करोगे? बाकी के जो सारे हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में। इतना समझ में आया? फिर है क्वेश्चन दैट ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑन अमालगमेशन। क्या है बेटा ये? ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स ऑन अमालगमेशन। जैसे हमने इस वाले में पढ़ा था ना, परचेज कंसिडर, इसमें क्या था अपना ये, इसमें पढ़ा था ना हमने पूलिंग वाले मेथड में कि आइडेंटिटी प्रिजर्व करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखेंगे, सेम अकाउंट ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर देखना, यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स है और ये एग्जाम में आया भी है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखना। आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व आर नॉट प्रिजर्व। पहला, स्टैट्यूटरी रिजर्व आर मेंटेन्ड बाय दीपक लिमिटेड सो लॉन्ग एज देयर आइडेंटिटी इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूट। दीपक लिमिटेड में जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो भी तब तक मेंटेन करेंगे जब तक लॉ बोलेगा। व्हेन इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बोथ द रिजर्व्स एंड अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट आर रिवर्स्ड। अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट अपने क्रिएट किया था। देखो एक चीज़ मेरी समझने की कोशिश करो, इफ़ यू गाइज लुक हियर, हमने ये देखा था कि जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है उनको डायरेक्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व में डाल दो, रोशनी का, दीपक में, और जो भी बाकी के रिजर्व्स है उनके लिए हम बना रहे क्या, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। तो ये जो अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व है और जो अलग रिजर्व है जो कि आपने किस में डाला था, डेबिट किया था आपने, सॉरी किस में डेबिट किया था, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में जो अमाउंट डेबिट किया था और जो स्टैट्यूटरी रिजर्व थे, वंस दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो सारा का सारा जो एंट्री था वो आपको रिवर्स करना है। तो पहला हमने ये देखा कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ के बाकी किसी का आइडेंटिटी प्रिजर्व नहीं करना है। स्टैट्यूटरी रिजर्व भी तब तक बनाओ जब तक लॉ बोलेगा तब तक, और एक बार इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है तो एंट्री को रिवर्स मार दो। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज डिडक्ट, amount of consideration is deducted from value of net assets of transferor company। if difference is negative तो goodwill आएगा, पॉजिटिव है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ये चीज़ हमने सेम उसमें भी की थी। amount of consideration is deducted from value of net assets of transferor company। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी की दीपक रोशनी लिमिटेड का जो भी नेट एसेट्स है और दीपक लिमिटेड उसको जो भी कंसिडरेशन दे रहा है, अगर जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आ रहा है तो गुडविल होगा, और डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व होगा। समझा बेटा? फिर गुडविल ऑन अमालगमेशन होगा ऑब्वियसली, अगर ऐसा होता है तो गुडविल ऑन अमालगमेशन होगा ये। चलो अब गुडविल ऑन अमालगमेशन है क्या एग्जैक्टली, वो यहाँ पर है, देखना। So goodwill represents as payment made in anticipation of future income, and it is appropriate to treat it as an asset to be amortized to income in a systematic basis over its useful life. Estimation is done on prudent basis. Hence, it is appropriate to amortize for a period not exceeding 5 years. तो goodwill को कहीं ना कहीं हम मान रहे हैं कि इट रिप्रेजेंट एज पेमेंट मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इनकम, कि हम लोग गुडविल दे रहे हैं कि भाई फ्यूचर में इतना इनकम आएगा इसके गुडविल के नाम से। समझो, इसने इतना गुडविल बनाया तो फ्यूचर में इतनी इनकम आने वाली है। अच्छा मुझे एक बात बताना, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे जो चैनल्स होते हैं, या इंस्टाग्राम पे जो चैनल्स होते हैं, शूट आउट कराने के लिए भी लोग पैसे देते हैं,
काइंड ऑफ गुडविल, बिकॉज वो चैनल पे उतने लोग हैं, वो चैनल पे उतने लोग फॉलो कर रहे हैं. तो सिमिलरली इफ़ यू सी ऑन यूट्यूब, कुछ नहीं बनाया होता वीडियो में, ठीक है, कुछ नहीं बनाया होता, बट एक बार वो उसका चैनल वायरल हो गया तो फिर बाकी के वीडियोस पे भी 50K लाइक्स, 1 मिलियन लाइक्स आ जाते हैं, बिकॉज एक बार जो चीज़ वायरल हो गई तो उसके चैनल्स को लोगों ने सब्सक्राइब किया है, राइट. तो सिमिलरली जब मार्केट में गुडविल है पर्टिकुलर रोशनी लिमिटेड का, गुडविल है मार्केट में रोशनी लिमिटेड का, तो कहीं ना कहीं ये गुडविल के नाम पे दीपक लिमिटेड को इनकम मिलेगा फ्यूचर में. तो जो दीपक लिमिटेड है वो इसके लिए ही पैसे पे कर रही है. आई थिंक इतना क्लियरली और इतना डिटेल में समझ गया होगा आपको. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल. कि आप यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे बेटा? कौन कौन से फैक्टर्स देखोगे वाइल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल? कौन कौन से फैक्टर्स देखोगे? फोर्सिएबल लाइफ ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस की ज़िंदगी कितने दिनों की है. इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऑब्सोलेंसेस. इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल, कि ये जो गुडविल मैं खरीद भी रहा हूँ ना, ये कितने साल तक चलने वाली है. तो बिजनेस कब तक चलने वाला है, बिजनेस का लाइफ देख लो. अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड, डिमांड में चेंज आ रही है, या फिर इकोनॉमिक फैक्टर से कोरोना हो रहा है, या ऑब्सोलेंसेस, सो ऑब्सोलेसेंस हो रहा है. तो फिर क्या ऑब्सोलेसेंस मतलब ये होता है कि मार्केट में जब नोकिया थी, नोकिया ने विद चेंजिंग मार्केट अपने आप को चेंज नहीं किया. वो अपना डब्बा फ़ोन ही भेजी थी, सोचे थे यही चलेगा इंडिया में, नहीं हुआ, नोकिया बंद हो गया. ठीक है. सो ऐसे सब चीज़ों से क्या इफेक्ट पड़ेगा गुडविल पे. ठीक है. थर्ड, सर्विस लाइफ एक्सपेक्टेंसीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ कब तक टिकेंगे. रोशनी लिमिटेड के जो एम्प्लॉयज़ आए हैं या जो एम्प्लॉय ऑलरेडी वर्किंग है वो कब तक टिकेंगे, कब तक सर्विस देंगे मुझे. ये लोग कौन से बेसिस पे, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर सैलरीड बेसिस पे. एक्सपेक्टेशंस बाय कॉम्पिटिटर्स, एक्सपेक्टेड एक्शंस बाय कॉम्पिटिटर्स, कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर सकते हैं. मैं रोशनी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहा हूँ, ठीक है. लेट्स से व्हेन जियो लिमिटेड वाज इन द मार्केट एंड होल्डिंग अ डोमिनेंट पोजीशन, तो आइडिया और वोडाफोन ने मर्जर किया था. तो वो लोग ने ये फैक्टर्स भी देखा होगा, एक्सपेक्टेड एक्शंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स बाय कॉम्पिटिटर्स, कि अगर हम दोनों मर्ज हो जाते तो कॉम्पिटिटर क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. तो ये मर्ज ही होने की बात हो रही है ना बेटा, कहीं ना कहीं. तो वही पूछा है, फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ गुडविल. कौन कौन से फैक्टर्स देखा होगा. अच्छा, इसको आइडिया और वोडाफोन से कनेक्ट करते हैं. सबसे पहले आइडिया और वोडाफोन ने मर्ज होते टाइम ये देखा रहेगा कि भाई फोर्सिबल लाइफ बिजनेस का क्या है, डिमांड चेंज होता है या इकोनॉमिक फैक्टर होता है या ऑब्सोलेसेंस होता है, तो मार्केट में तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मर्ज होने के बाद. एम्प्लॉयज़ कब तक सर्विस देंगे, और एक्शंस क्या है, कॉम्पिटिटर्स का क्या एक्शन हो सकता है, और लीगल रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजन अफेक्टिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द गुडविल. कोई लीगल मैटर चल रहा है क्या, कुछ है क्या, कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी से नोटिफिकेशन आया है क्या. तो सारी चीज़ें आप देख लोगे. बैलेंस ऑफ P&L मर्जर के केस में क्या होगा और परचेज के केस में क्या होगा. परचेज के केस में सिंपल होगा कि लूजेज इज आइडेंटिटी, बिकॉज वो कोई भी प्रिजर्व करके नहीं रखता है. और यहाँ पे एग्रीगेटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दीपक लिमिटेड विद द करस्पॉन्डिंग अमाउंट, ऑल्टरनेटिवली इट इज़ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. मतलब या तो रोशनी का प्रॉफिट दीपक के प्रॉफिट में डाल दो या फिर जनरल रिजर्व में भी डाल सकते हो. फिर है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ये मैंने पूरा का पूरा कवर किया है. अभी हमको सिर्फ और सिर्फ 1 2 4 more pages, and one more time, if you watching this video you don't need to touch the module. This is my 100% guarantee. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में क्या होता है, बिकॉज आई हैव कवर्ड 100% मॉड्यूल. डिस्क्लोजर इन फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग द अमालगमेशन. यहाँ पे क्या है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. नाउ डिस्क्लोजर ऑफ व्हाट, so disclosure in first financial statement following the amalgamation. So let's say Roshni Limited and Deepak Limited now got merged into Deepak Limited. Now Deepak Limited अपना पहला financial statement बना रहा है, तो Deepak Limited क्या क्या disclosure देगा. दीपक लिमिटेड सबसे पहले बताएगा नेम एंड जनरल नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी, कि रोशनी का नाम क्या है और उसका बिजनेस क्या चीज़ का बिजनेस करती है रोशनी लिमिटेड. इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगमेशन, इस पे ना एक अच्छा खासा केस लो है जो कि आगे आएगा आई गेस.
इस चैप्टर में है या किसी और चैप्टर में, आई एम नॉट श्योर। मे बी वो हाँ राइट, वो चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ अपॉइंटेड डेट पे। वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो उस चैप्टर में है ये कि अपॉइंटेड डेट का क्या मतलब होता है। कौन से चैप्टर में, आई थिंक 4 में ही है। हाँ 4 में ही है, बराबर 4 में ही है कि अपॉइंटेड डेट कब होगी, इफेक्टिव डेट कब मानेंगे, कैलेंडर डेज वाला मानेंगे या फिर जिस दिन उसमें बहुत सारा चीज़ें दिया गया है, केस लॉज है। वो आप उस वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा। अभी करना, रिपीट करना अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम होगा अगर जिसने देख लिया ऑलरेडी। सो डिस्क्लोजर इन फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग द अमालगमेशन। जैसे ही दीपक लिमिटेड में मैं मिल गई, रोशन लिमिटेड, सो दीपक लिमिटेड को उसके फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले ये बताना होगा कि रोशन लिमिटेड का नाम क्या था और वो किस टाइप का बिजनेस कर रही है। ये डेट ऑफ अमालगमेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगमेशन हमारा कब से है, अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज़ किया है, और पर्टिकुलर्स ऑफ स्कीम सैंक्शन एंड अंडर सैंक्शन अंडर स्टैट्यूट। पर्टिकुलर्स ऑफ स्कीम भी आप दे दोगे। स्कीम जो है ड्राफ्ट स्कीम आपकी थी, फिर वो सैंक्शन हुई, तो जो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी है एनसीएलटी के थ्रू, वो आप पर्टिकुलर्स ऑफ स्कीम भी दे दोगे। किसको दे दोगे ना, आप डिस्क्लोज करोगे, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है ये तो हो गया नॉर्मल डिस्क्लोजर ना। व्हाट आर दोज एडिशनल डिस्क्लोजर, व्हाट आर दोज एडिशनल डिस्क्लोजर, कि इसके अलावा भी कुछ डिस्क्लोज करना है क्या भाई साहब, इसके अलावा भी कुछ डिस्क्लोज करना है क्या। सो अगर पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है तो ये, और परचेज मेथड है तो ये। तो मॉड्यूल में इसका आंसर ऐसे ही दिया है, पहले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दिया है, इतना लिखा है, फिर लिखा है एडिशनल डिस्क्लोजर इन केस ऑफ पोलिंग इंटरेस्ट, एडिशनल ये पूरा आंसर लिखा, फिर एडिशनल डिस्क्लोजर इन केस ऑफ परचेज मेथड। सो पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट में आ जाते पहले। पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट में ये दिया है दैट नंबर ऑफ शेयर्स इशूड प्लस परसेंटेज ऑफ ईच कंपनीज इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज टू इफेक्ट द अमालगमेशन। क्या है ये, इसका क्या मतलब हुआ, पढ़ो जरा इसको। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मतलब मेरे को डिस्क्लोजर देना है ना बेटा, क्या देना है मुझे, डिस्क्लोजर देना है या नहीं, डिस्क्लोजर देना है। अगर मैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट वाला मेथड फॉलो कर रही हूँ तो मुझे ये बताना है कि मैंने कितने शेयर्स इशू किए हैं, कितने शेयर्स इशू किए हैं, एंड परसेंटेज ऑफ ईच कंपनीज इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज टू इफेक्ट द अमालगमेशन। परसेंटेज ऑफ ईच कंपनीज इक्विटी शेयर्स एक्सचेंज टू इफेक्ट द अमालगमेशन। कि इस अमालगमेशन को करने के लिए रोशनी लिमिटेड और दीपक लिमिटेड का, रोशनी लिमिटेड एंड दीपक लिमिटेड का इक्विटी शेयर एक्सचेंज क्या था वो बताना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल एसेट अक्वायर्ड, कि कंसिडरेशन क्या था, कंसिडरेशन क्या मिला था रोशनी लिमिटेड को, और वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफिएबल एसेट्स एक्वायर्ड, कितने में आपने एसेट्स को एक्वायर किया था, वो चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। ये कौन बता रहा है, ये सारा डिस्क्लोजर कौन दे रहा है, दीपक लिमिटेड दे रहा है ना, तो वो बताएगा कि कंसिडरेशन जो मैंने दिया था और जो आइडेंटिफिएबल एसेट्स है उनके बीच में डिफरेंस करना है। आई होप इतना आपको समझ में आया है। परचेज के केस में क्या रहेगा एडिशनल डिस्क्लोजर, दैट कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन आपने कितना दिया है, और डिफरेंस बिटवीन द कंसिडरेशन एंड नेट आइडेंटिफिएबल एसेट एक्वायर्ड कितना है, एंड ट्रीटमेंट देयर ऑफ, एंड इंक्लूडिंग द पीरियड ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ एनी गुडविल अराइजिंग ऑन अमालगमेशन। अमोर्टाइजेशन वाले पीरियड को भी आप ले लोगे। सो दिस वॉज द पॉइंटर्स। सो these were this is the question that what are the disclosure to be made in first financial statement of the Deepak Limited। तो ये सारी चीज़ें हो गई, फिर ये एडिशनल डिस्क्लोजर हो गए। नाउ द 6th पॉइंट इज अमालगमेशन आफ्टर बैलेंस शीट डेट अगर हो रहा है बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमालगमेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर एज पर AS4 दोगे, क्योंकि AS4 जो होता है वो होता है इसके लिए कंटिजेंसी एंड इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि आपका अमालगमेशन जो है, ठीक है, आपका अमालगमेशन जो है वो बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से पहले हो रहा है, तो AS4 में आप डिस्क्लोजर दे दोगे। सो इस तरह से हमारा AS14 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। नाउ वी आर डूइंग इंड AS 103 जो कि इतना बड़ा है। दैट्स इट, यस। शैल आई कंटिन्यू और शैल आई स्टॉप, आई एम डबल माइंडेड राइट नाउ। चलो यारो, आए हैं तो कर ही के जाएंगे। इंड AS 103 में क्या है देखना,
ऑलराइट, सो इंड एस 103 में सबसे पहले समझना, इंड एस 103 टॉक्स अबाउट बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इतना समझ में आ गया? नाउ पहले तो ये समझो बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कि इंड एस 103 किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं है, बिजनेस का क्या मतलब है, और फिर एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस क्या हो सकता है। सो दीज फोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर। उसके बाद वी कैन अंडरस्टैंड बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाइटीज अंडर कॉमन कंट्रोल है तो क्या, डिस्क्लोजर क्या क्या देना पड़ता है। देन वी कैन अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। Business combination is nothing but a transaction in which acquirer obtains control of acquiree। मतलब कि अगर रोशनी और दीपक का केस ले लेना यहाँ पे, तो business combination is nothing but it is a case where दीपक is acquiring the control of रोशनी। ये समझ में आया? Business combination is a transaction in which acquirer obtains control of acquiree। अच्छा, अगर मैं इसको अपने से रिलेट कर पाऊँ तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। एंड आई होप मोस्ट ऑफ द वुमेन आफ्टर मैरिज वुड अग्री टू मी, बट आई डोंट थिंक सो इसमें होंगे मेरे सब्सक्राइबर्स में से, बट स्टिल आई बिलीव दैट it is a transaction in which acquirer obtain the control of acquiree। I am not denying the fact that it's something like that, but कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है यार एक्वायरर का एक्वायरी पे, कहीं ना कहीं दीपक का कंट्रोल मुझ पे होगा। इफ आई एम गोइंग समवेयर आई वुड एटलीस्ट नीड टू इन्फॉर्म हिम, नॉट टेकिंग अ परमिशन दैट यू नो कैन आई गो देयर, कैन आई गो हियर, बट एटलीस्ट आई वुड नीड टू इन्फॉर्म इट या दैट यू नो व्हाट आई एम गोइंग हियर। एटलीस्ट आई वुड नीड टू इन्फॉर्म हिम। कहीं ना कहीं यू हैव टू गिव डिस्क्लोजर टू दैट पर्सन। आर यू गिविंग द डिस्क्लोजर? Yes, but that's a different thing. That's what I'm saying, that after business combination there is a transaction, it is a kind of transaction in which acquirer obtains control or control of acquiree। if अगर इसको अलग point of view से देखना है तो ये भी आप देख सकते हो कि once दीपक acquires the control of रोशनी, now रोशनी is not allowed to make crushes, or maybe you can say that. I'm just giving you an example to make this weird thing in a very funny way. It is not true, I'm not relating, I'm not that kind of stupidity I don't want to talk about, but I'm just giving you an example ताकि आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख पाओ कि कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? कंट्रोल की बात हो रही है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जहाँ पे रोशनी का कंट्रोल जो है वो दीपक के पास चला जाएगा आफ्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन। If an entity obtains control over other entity which are not business, the business combination उसको फिर हम लोग बोलेंगे business combination नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे वो asset acquisition है। मतलब जब आप business combination कर रहे हो तो combination कर रहे हो तो वो business होना चाहिए। If an entity obtains control over other entity which are not business, तो उसको business combination नहीं बोलेंगे, उसको asset acquisition बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, मे बी वियर्ड, मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। अगर इफ एन एंटाइटी ऑब्टेन्स कंट्रोल ओवर एंटाइटी विच आर नॉट बिजनेस, अगर दीपक इज लुकिंग फॉर अ गर्ल विच इज नॉट अ गर्ल और हु इज नॉट अ गर्ल इन रियलिटी, तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, उसको शादी नहीं बोलेंगे, उसको एसेट एक्विजिशन बोलेंगे। अब ये थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, सो फॉरगेट द दिस वन कि यार शादी होने के लिए लड़की ज़रूरी है या नहीं। तो सिमिलरली जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो बिजनेस तो ज़रूरी है ना, तो बिजनेस का डेफिनेशन क्या है कि बिजनेस किसको बोलते हैं। बट एनी विच वेज बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कि इंड एस 103 डज नॉट अप्लाई टू दीज पीपल। हु आर दिस पीपल? जॉइंट वेंचर। भाई आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो, आप बिजनेस कॉम्बिनेशन थोड़ी कर रहे हो। जॉइंट वेंचर कर रहे हो तो बिजनेस कॉम्बिनेशन और प्रोविजन आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स विच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि हम उसको एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बोलेंगे, उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। अगर अब वो बिजनेस ही नहीं है तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहाँ से बोलेंगे? अगर वो लड़की नहीं है तो लड़के और लड़के की शादी थोड़ी बोलेंगे, तो कुछ और बोलेंगे, 377 बोलेंगे। अकाउंटिंग फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल, कि जब आप अकाउंटिंग करते हो फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन कॉमन कंट्रोल पे भी लगता है, लेकिन ये वाला जो प्रोविजन है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, इंड एस 103 वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट, ये वाला जो है इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का, वो एप्लीकेबल नहीं होता 3 लोगों पे, जॉइंट वेंचर पे, या फिर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन जो बिजनेस ही नहीं है, एक्विजिशन आप कर रहे हो जिस एसेट्स का जो बिजनेस ही नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर अकाउंटिंग वो कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस अंडर कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल में हो तो आप उसको बिजनेस नहीं बोलोगे।
बिजनेस इज अब बिजनेस क्या है वो देख लो, ठीक है। जिसको जिसको बिजनेस करने का शौक है फ्यूचर में वो सुन लो बिजनेस किसको बोलते हैं। अभी तक हमको पता है कि बिजनेस 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 बिजनेस, कल वो किसी जीडीपीडी में जाओगे आपको बोल दिया बिजनेस क्या है, बताओ क्या क्या आपके हिसाब से बिजनेस क्या है। ऑब्वियसली डेफिनेशन नहीं बोला, बट इस डेफिनेशन की हेल्प से आप थोड़ा तो कंक्लूड कर पाओगे आई गेस। Business is an integrated set of activities and assets that is capable of being conducted in a manner to provide return in the form of dividend या फिर lesser cost other benefit to the member या फिर investor। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? बिजनेस इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज या फिर एसेट्स, मतलब एक इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटी, आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो या फिर कुछ एसेट्स है आपके पास दैट इज केपेबल ऑफ बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर टू प्रोवाइड रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। मतलब आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिससे आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सको, लेसर कॉस्ट एंड अदर बेनिफिट्स टू मेंबर इन्वेस्टर, मतलब लेसर कॉस्ट पे शेयर दे सको। सो दैट इज नथिंग बट द बिजनेस। एलिमेंट ऑफ बिजनेस या फिर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस, उस तो अब आ जाएंगे यहाँ पर। मुझे थोड़ा बोर हो रहा है एक्चुअली, आई नो आई शुडंट से दैट, आई कैन कट दिस लाइन बट आई एम जनरली गेटिंग जनरली क्यों बोल रही हूँ मैं, जेन्युइनली गेटिंग बोर्ड। दिस टॉपिक इज नॉट बोर्ड बट ठीक है। नाउ बिजनेस के एलिमेंट क्या है या फिर कंपोनेंट क्या है, तो बिजनेस के एलिमेंट बता दो या फिर बिजनेस के कंपोनेंट बता दो, ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना है। लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस चैप्टर इज ऑफ 5 स्टार बिकॉज ये इसमें से लास्ट ईयर भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे जून 22 में लास्ट अटेम्प्ट में, और इसके पहले भी इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं हर बार। तो ये चैप्टर हमेशा के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हो। एलिमेंट ऑफ बिजनेस या फिर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस क्या है, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। पहले आप इनपुट करोगे, पहले आप इनपुट लोगे जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, फिर आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करोगे, फिर उससे आपको आउटपुट मिलेगा। एग्जाम्पल था, आगे क्या है अंदर यहाँ पे देखते हैं। इनपुट में क्या बोला है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट हैज एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट इफ प्रोसेस्ड, मतलब ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स मैं ले रही हूँ जिस पे हैज़ एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट, अगर जिस मतलब रॉ मटेरियल को अगर मैंने प्रोसेस किया तो मुझे आउटपुट मिलेगा, कुछ ना कुछ बन के मिलेगा। सिमिलरली इकोनॉमिक रिसोर्सेज है जिस पे मैं अगर कुछ प्रोसेस कर रही हूँ तो मुझे उसका आउटपुट मिलेगा। समझा बेटा? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया है नॉन सी ए। नॉन सी ए क्या है ये? नॉन सी ए क्यों लिखा है मैंने नॉन सी ए? आई डोंट गेट दिस। Let me just open my this one here module. Non CA क्यों लिखा है मैंने इधर? So we are doing components, right? यहाँ पर है। नॉन, ओ माई गुडनेस, नॉन करेंट एसेट्स, मैं भूल कैसे गई इसको। नॉन करेंट एसेट्स है ये। मतलब लॉन्ग टर्म है, करेंट एसेट्स नहीं है, मतलब नॉन करेंट है ना। चलो, सो इनपुट मतलब कि कोई भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिस पे मैंने प्रोसेस किया तो मुझे उस पर आउटपुट मिलेगा। प्रोसेस मतलब एनी सिस्टम या प्रोटोकॉल या फिर कन्वर्जन या फिर कन्वेंशन या फिर रूल दैट व्हेन अप्लाइड टू इनपुट हैज़ एबिलिटी टू क्रिएट आउटपुट। इसका मतलब भी सेम है। प्रोसेस मतलब कोई भी सिस्टम, प्रोटोकॉल बोल लो, कन्वेंशन बोल लो, रूल बोलो, जिसको अगर मैंने इनपुट पे अप्लाई किया तो मेरे को आउटपुट मिलेगा। आउटपुट रिजल्ट ऑफ इनपुट, सिंपल। तो ये था आपका एलिमेंट ऑफ बिजनेस या फिर कंपोनेंट ऑफ बिजनेस बोल लो। फिर है बिजनेस कॉम्बिनेशन कंट्रोल बाय वन एंटाइटी। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब दिया है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो कंट्रोल बाय वन एंटाइटी ऑफ अनदर इज सफिशिएंट एंड बोथ कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, बोथ कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट या एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट, बोथ कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, सो दैट्स होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब ही ये है कि होल्डिंग कंपनी ने तो लेट्स से दीपक लिमिटेड ने रोशनी लिमिटेड को अक्वायर कर लिया, ठीक है।
रोशनी लिमिटेड को अक्वायर कर लिया. सो नाउ दीपक लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी इन सच अ वे कि एक्विजिशन किया, टेक ओवर नहीं किया है गाइस, टेक ओवर नहीं किया है. Deepak Limited has acquired 60% shares of Roshni Limited. So Deepak Limited is holding company, Roshni Limited subsidiary company. Both the company are working. That is business combination. फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटाइटीज अंडर कॉमन कंट्रोल क्या होता है. अभी हमने देखा था ना कि इंडिया 103 कॉमन कंट्रोल पे नहीं लगता. अब हम देख रहे कॉमन कंट्रोल क्या होता है. कॉमन कंट्रोल मतलब ये दैट बिजनेस कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग एंटाइटीज इन विच कंबाइनिंग एंटाइटीज आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय सेम पार्टीज. Combining entities are ultimately controlled by same parties both before and after combination. इसमें एग्जाम्पल दिया है देखना कि पी लिमिटेड जो है वो S1 में पहले 100% होल्ड, ये बिफोर अमालगमेशन है कि पी लिमिटेड जो है वो S1 में 100% होल्ड करती है और S1 लिमिटेड जो है S2 में 60% होल्ड करता है. ठीक है. नाउ अगर पी लिमिटेड अक्वायर करेगा S1 लिमिटेड को, S1 लिमिटेड का 60% जो उसने S2 में होल्ड करके रखा है, समझ में आया इतना. अगर पी लिमिटेड इन शॉर्ट S1 का वो वाला 60% एक्वायर कर ले जो उसने S2 लिमिटेड में होल्ड करके रखा है, तो कहीं ना कहीं आफ्टर अमालगमेशन इन ग्रुप पी लिमिटेड S1 का तो 100% होल्ड कर ही रहा है, S2 का भी 60% होल्ड कर रहा है. सो बिफोर एंड आफ्टर सेम ही था ना यार, क्योंकि देखो इधर देखना, S1 लिमिटेड एनी विच वे 60% इसका होल्ड कर रहा है, लेकिन इसका तो ये 100% होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले से ही होल्ड करके रखा था. लेकिन अगर ये वाला 60% भी एक्वायर कर ले, ये वाला 60% भी एक्वायर कर ले, तो फिर अब S1 में तो 100% है, S2 में भी 60% हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्या है, डिस्क्लोजर देखना. क्या क्या डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत पड़ेगी बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे. ये सेम जो डिस्क्लोजर है पहले भी देखा था हमने. नेम एंड जनरल नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ कंबाइनिंग एंटाइटीज, की जो एंटाइटीज कंबाइन हो रही है रोशनी लिमिटेड एंड दीपक लिमिटेड, तो रोशनी लिमिटेड एंड दीपक लिमिटेड दोनों का नाम दे दो. जनरल नेचर ऑफ बिजनेस बता दो, क्या बिजनेस कर रहे हैं लोग. डेट ऑन विच ट्रांसफर डेट ऑन विच ट्रांसफर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर. कौन सी डेट पे दीपक ने रोशनी लिमिटेड को अक्वायर किया था या कंट्रोल अक्वायर किया था. सॉरी, बिजनेस कॉम्बिनेशन व्हेन वी टॉक वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल एंड नॉट द एक्विजिशन, वी आर अक्वायरिंग द कंट्रोल. Number of shares issued together with the percent of each entity's equity shares exchanged to effect the business combination. Difference between consideration and value of not identifiable assets. ये सेम चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है, तो मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ. कहाँ पढ़ी है वो मैं बता सकती हूँ आपको. ये वाला देखना, ये जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा था. नेम एंड जनरल नेचर ऑफ बिजनेस, इफेक्टिव डेट ऑफ अमालगमेशन, फिर ये वाला पॉइंट, number of shares, percentage of each company's equity share exchange in this, then difference between consideration and value of net identifiable assets acquired. कितना हो गया अपना. अभी एक पेज बाकी है, इसके बाद 2 पेज और है मॉड्यूल के. I am genuinely tired. Method of accounting for common control business. 1 घंटा हो गया. I'm just gonna have sip of water and then would resume maybe. सो अभी हमने जिसका अकाउंटिंग देखा था वो हमने अमालगमेशन का देखा था. 2 मेथड से देखा था, पूलिंग मेथड जो परचेज मेथड से. बट दिस इज टॉकिंग अबाउट द कॉमन कंट्रोल बिजनेस का. जब आपको अकाउंटिंग करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसकी बात की गई है. तो देखना कैसे होगा ये. बिजनेस कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग एंटाइटीज अंडर कॉमन कंट्रोल शेल यूज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. कि ये जो कॉमन कंट्रोल वाले हैं ना, ये लोग भी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ही यूज़ करेंगे. मेथड कंसिडर टू इन्वॉल्व फॉलोइंग, कि उस मेथड में 3 चीज़ें हैं, बेसिकली 4. तो क्या क्या चीज़ें वो देखना. द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंबाइनिंग एंटाइटीज आर रिफ्लेक्टेड एट द कैरिंग अमाउंट. ठीक है, बुक वैल्यू पे दिखेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंबाइनिंग एंटाइटीज. ये पहले वाले मेथड में भी था. अब ये मत बोलना कि याद नहीं आ रहा, बस था ना इधर. ये सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये लोग कंबाइनिंग नहीं है ना बेटा, ये ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र, ये तो ट्रांसफ़र के एसेट ट्रांसफ़र कंपनी के बैलेंस शीट में बुक वैल्यू में दिखेंगे. सिमिलरली यहाँ पे अगर ये लोग कंबाइन हो रहे हैं तो दोनों के एसेट्स जो है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंबाइनिंग एंटाइटीज आर रिफ्लेक्टेड द कैरिंग अमाउंट, दैट इज बुक वैल्यू. सेकेंड, no adjustment made to recognize the new assets or liabilities, adjustment made only to harmonize accounting policy. सिंस ये कंबाइनिंग एंटाइटी है तो आप कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो टू रिकॉग्नाइज एनी न्यू एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज. एडजस्टमेंट मेड ओनली टू हार्मोनाइज योर अकाउंटिंग पॉलिसीज. थर्ड क्या है देखना. थर्ड ये है, दिख रहा है ना,
थर्ड ये है दैट financial information in financial statement in respect of prior period should be restated as if business combination had occurred from beginning of the earliest period presented in financial statement irrespective of the actual date of combination. However, if business combination happened after the date prior period info shall be restated only from that day. अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बना रहे हो ना एजीएम में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रहेगा उसमें जो इफेक्ट होगा वो प्रायर पीरियड से होना चाहिए, इस तरीके से कि बिजनेस कॉम्बिनेशन जो था वो स्टार्टिंग ऑफ द बिगनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टार्टिंग से हुआ था. अभी जैसे देखना, मेरी बात समझने की कोशिश करना. अभी आज कौन सा डेट है? आज आई गेस 23 है, राइट. 23 सितंबर है. बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है आपका वो आज हुआ है, समझो 23 सितंबर को है. अब मुझे ये जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगी तो मैं ये दिखाऊंगी भाई ये 1 अप्रैल से हुआ है. मतलब ऐसे शो करना पड़ेगा मुझे चीज़ें कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल क्या हो गया है मुझे, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी ख़राब क्यों हो गई है. 1 अप्रैल से ही हुआ है, ऐसे हम बताएंगे, ऐसे जताएंगे कि 1 अप्रैल से हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हुआ है. वही दिया ना, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ तक का बनाया था, मतलब वही यार स्टार्टिंग ऑफ द ईयर. 15 बोल रही हूँ, क्या हो गया मुझे, 1 अप्रैल irrespective of the actual date of combination. लेकिन अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन जो आपका है दैट हैपेंड आफ्टर डेट प्रायर पीरियड इन्फो के हिसाब से हुआ है, देन आपको जिस डेट से है उस डेट पे ले लेना है. फिर ये देखना कि कंसिडरेशन का क्या बोला है, कि कंसिडरेशन सिक्योरिटीज़ में भी दे सकते हो, सिक्योरिटीज़ में नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, कैश में भी दे सकते हो, एसेट्स में भी दे सकते हो. एसेट्स में दोगे तो फेयर वैल्यू पे देना. आइडेंटिफाई ऑफ रिजर्व प्रिजर्व करना पड़ेगा आपको. आइडेंटिफाई ऑफ रिजर्व, आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व आपको प्रिजर्व करना है, बिकॉज वी आर डूइंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑल्सो. इतना समझ में आया. देखो पहले क्या था कि कंसिडरेशन आप सिर्फ सिक्योरिटीज़ में दे सकते हो, जो हमने अमालगमेशन वाला पढ़ा था, राइट. सिक्योरिटीज़ में दे सकते हो.